we'll start the lesson. Okay, let me share the screen with you, and we'll go through a video by Nihir sir in which he's helping us to understand how to combine sentences and what the structure of the sentences are. Okay, so अब पहले मेरे को बताओ, who knows how many types of sentences are there? Tell me. How many types of sentences do you know of? Negative and positive. Okay, negative and positive. Anything else? Huh? Question sentences. Which sentences? Question Question sentences, which are interrogative sentences. Okay, positive sentences, negative sentences, interrogative sentences. Which other? Munish, do you know which is another type of sentence? Yes, ma'am. Types of sentences की बात कर रहे हैं हम. Anjali and Nilesh have told us they know of negative sentences, positive sentences, interrogative sentences. Do you know of any other type of sentence? Tell me. Do you know of different punctuation marks? There is one punctuation mark which has a vertical line and a dot underneath it. What is Exclamation. exclamatory mark? So when we use the exclamation mark, then it is so that those are exclamatory sentences. कौन से होते हैं वो? Exclamatory. So the different types of exclamatory. So I'll just write, and all these sentences, हम कहीं पे भी आप कोई भी बुक पढ़ोगे आपको नज़र आएगा कि ये सेंटेंसेस कभी कोई यूज़ हुआ होता है, कभी कोई यूज़ हुआ होता है. हमको मालूम भी नहीं चलता कि ये क्या क्या यूज़ हुए हैं, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते. उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट वी शुड बी अवेयर. सो इफ़ वी जस्ट राइट what you all have said, so these are the different types of sentences that we are talking about: positive, negative, interrogative, exclamatory. कुछ और भी होते हैं, assertive, ये मालूम है? Assertive sentences, imperative sentences, imperative sentences. और कौन सा होता है? मेरे को खुद भी नहीं याद आ रहे, पर मैं आज आपको ये सारे टाइप्स नहीं करवाने वाली हूँ. ओके, ये सारे सेंटेंसेस सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, एंड कंपाउंड भी हो सकते हैं. तो आज हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस पे कंसंट्रेट करेंगे. तो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ये वाले हम करेंगे, बट आज मैं नॉर्मल से सिंपल सेंटेंसेस लूँगी. ओके, सो वील जस्ट टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंसेस. Then there could be compound sentences, and then there could be complex sentences. Somebody else is joining. Khushbu. Okay. Compound sentences and complex sentences. अब ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, इसकी डेफिनेशन में उतना हम अगर जाएंगे ना तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. सो बेसिकली मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी टाइप के सेंटेंसेस हैं, चाहे इम्पेरेटिव है, असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटरोगेटिव है, all can be simple or they can be slightly more complicated, which we call compound, and even more complicated, which we call complex sentences. So अब अगर हमारे पास
today what I'm going to teach is, if we have two simple sentences, how do we combine them to make a single simple sentence? Okay, abhi main, without looking at a video or anything, I'll just write two sentences here, and then we'll start and I'll keep asking you how to combine them. So, the thief saw the policeman. Okay, हम अगर ऐसे बोलें, the thief saw the policeman. Full stop. He hid behind a क्या बोल सकते हैं, wall. He hid behind a wall. Okay. Now, if this is a sentence, how will you combine them? इन दोनों को मिला के एक करना है हमने. कोई कर सकता है? ट्राई करो. The thief saw a policeman. He hid behind a wall. तो हम इनको अगर कंबाइन करें तो हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं दोनों को, ताकि एक ही सिंपल सेंटेंस बने. सिंपल सेंटेंस क्या, उसमें एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही बोलो. कोई भी ट्राई करो. यू कैन रेज योर हैंड, whosoever wants to try. Try combining the two sentences. मैं अभी जानबूझ के वीडियो नहीं दिखा रही. He hid behind a wall, है ना, ये कंटिन्यूटी में है. इसको मिला के एक ही बनाना है कि एक ही सेंटेंस बने और यही मीनिंग रहे सेंटेंस का, और सिंपल सेंटेंस ही बने. हाँ, कैसे करेंगे, क्या कैसे कर सकते, आप कैसे भी बोलो, कैसे कंबाइन कर सकते हो, कोई भी जना बोलो. किसी का मैसेज आया है कुछ, अरे उसको वॉइस ही नहीं आ रही. खुशबू को चली गई, अभी आ जाएगी फिर से. हाँ, ट्राई करो. देखो The thief saw the policeman. Hid behind a wall. आपने क्या बोला? The thief saw a policeman. The thief saw a policeman. उसके आगे क्या बोला? बोलो. Very good. And hid behind a wall. Very nice. इसमें हमने किस चीज से इनको ज्वाइन किया, दोनों सेंटेंसेस को, और एक ही सेंटेंस बनाया. ज्वाइन किस चीज से किया? And is which part of speech? कौन सा? वेरी गुड, कंजंक्शन. ये मालूम है मुनीश? अरे मैंने, हाँ, मालूम है ना, एंड कंजंक्शन होता है. किसी और तरह से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं. सोचो. हाँ, किसी ने रेज किया हैंड. किसने किए? अच्छा, ये आई है खुशबू. द थीफ सॉ अ पुलिसमैन एंड हिड बिहाइंड अ वॉल. एब्सोल्युटली करेक्ट. एक और तरीके से, किसी और तरीके से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं. ट्राई करो मुनीश, ट्राई करो. हाँ, फिर से यही रेज कर रही है. कौन, अंजलि या नीलेश? हाँ, जो भी कर रहा है बताओ. Okay, yes, Nilesh, tell me. And the thief saw a police because he hid behind a wall. ये क्या, अब इससे तो मतलब ही चेंज हो गया.
एक तो आप वॉज सॉ तो बोलेंगे नहीं, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। मैम मैं बताऊँ? एक मिनट, पहले उसको समझा तो दूं उसने क्या क्या गलतियां बताई हैं। हाँ, तो एक तो हम ये द थीफ वॉज सॉ तो गलत है। द थीफ सॉ अ पुलिस मैन बिकॉज, नहीं, अब आप बिकॉज यूज कर रहे हो तो क्योंकि उसने पुलिस मैन को देखा तो उसलिए वो उसके पीछे छुप गया, है ना? तो फिर आप किस चीज से स्टार्ट करोगे सेंटेंस? द थीफ हिड बिहाइंड द वॉल। आपका थॉट प्रोसेस सही है तो हम लिख सकते हैं ऐसे। मैं लिख के बताती हूँ, आपकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है नीलेश, बट क्योंकि आप बिकॉज यूज कर रहे हो, वो भी एक कंजंक्शन है, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? क्योंकि उसने पुलिसमैन देखा था इसलिए वो पीछे छुप गया था, तो हम करेंगे द थीफ hid behind the wall because he saw a policeman. Okay? Okay, नीलेश? यस मैम। हाँ, यही बोलना चाह रहे थे ना आप? पर आपने, Yes, ma'am. हाँ, तो फिर इसमें हमने किससे स्टार्ट करना था? तो पहले ये बोलना था कि वो छुप गया, फिर बोला क्यों छुपा। ओके? तो वो सौ सब इकट्ठे वर्ड्स इकट्ठे नहीं बोलने हैं, सोच समझ के बनाना है सेंटेंस। हाँ, अब बताओ मुनीश, व्हाट वर यू सेइंग? वो लिख दिया। वही लिख दिया मैंने मैम अभी तो इतना बताया मुझे। अभी। अच्छा, ट्राई करो, ज़रूरी नहीं आए, अगर इतना भी आता है इतना भी बहुत है। खुशबू, आपको, आप इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने की कोशिश करो। द थीफ सॉ द पुलिसमैन, ही हिड बिहाइंड अ वॉल। ये दो सेंटेंसेस हैं और इन दोनों सेंटेंसेस का हमको एक सेंटेंस बनाना है। कैसे बनेगा? एक सेकंड, मैं थोड़ा सा म्यूट करूं। हाँ जया, क्लास चल रही। हाँ, लक्ष्मण कहाँ पे? अपने ही घर पे होगा ना? ओके, मेरे ख्याल में होगा। हाँ, ओके ओके ओके, उसको बोल देना, ही कैन सेंड अ मैसेज। हाँ ठीक है। सॉरी सॉरी चिल्ड्रन। हाँ, बना सकते हो इसको, जैसे अभी हमने दो सेंटेंसेस बनाए, ऐसे ही कोई और तरह से भी बन सकता है इसका सेंटेंस, वो सोचना है। मैं एक तरीके से बताऊं, जैसे अभी हम ये भी बोल सकते हैं, एक और तरीका, सीइंग द पुलिसमैन, द thief hid behind a wall। है, ये भी करेक्ट है ना? सब सेंटेंसेस के सेम मतलब है, चाहे हम उनको दो में एक करके बोल रहे हैं, चाहे हम अलग अलग बोल रहे हैं, चाहे हम एंड यूज करके बोल रहे हैं, बिकॉज यूज करके बोल रहे हैं। बिकॉज भी क्या है? बिकॉज इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। हाँ, आप बोलो, कुछ और बोलना चाहती हो? मैम आप मेरे को एक बार ये वापस समझा दो। क्या चीज समझाऊं वापस? मैम मैं बताऊँ? हाँ मैम मैं बोलेगा। मैम seeing the policeman, हाँ, the thief hide behind the wall. बी हिड बिहाइंड, हिड लिखा है, हिड बिहाइंड अ वॉल। Seeing the policeman, the thief hid behind the wall. वो तो वही लिखा है मैंने इधर, वही तो लिखा है मैंने यहाँ, सामने लिख दिया ना वो भी। यही तो लिखा है। हाँ, देखो आप बोर्ड पे देखो क्या क्या लिखा है, बोर्ड दिख नहीं रहा? और भी कुछ हो सकता है क्या? और किसी तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या इनको? हाँ मैम मैं सोचना है मैम। सोचो,
हाँ, अब मैं पहले खुशबू से पूछूं, खुशबू क्या बोल रहे हो, क्या समझाऊं आपको? मैम जो आपने समझाया अभी। मैंने कुछ भी नहीं समझाया अभी, ये बच्चों ने ही बनाए हैं। क्या है, दो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ना? अभी हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है, द थीफ सॉ द पुलिसमैन। दूसरा सिंपल सेंटेंस क्या है, ही हिड बिहाइंड अ वॉल। अब हमने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा है। हमें मालूम है ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं, कंजंक्शंस। अभी पहले अंजलि ने एंड कंजंक्शन यूज करके दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा, फिर नीलेश ने बिकॉज का यूज किया, फिर हमने उसको जोड़ा, फिर मैंने एक और डाल दिया, सीइंग। सीइंग क्या होता है? सीइंग सीइंग क्या चीज होती है? मैम एक और है पार्टिसिपल है ना सीइंग, मैम। प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, वर्ब का अलग फॉर्म है, इसको बोलते हैं। हाँ हाँ मैम एक बताओ ना वो। हाँ, बताओ बताओ। यस मैम मैम। हाँ हाँ, प्लीज सुनाओ। मैम को कंफर्म है मैम द thief हम्म, for seeing the policeman hid behind the wall. वेरी गुड। द थीफ अपॉन सीइंग द The policeman policeman hid behind the wall। तो ये भी, इसका भी सेम मतलब है। अब यहाँ पे हमने सीइंग यूज किया था, सीइंग द पुलिसमैन द थीफ हिड बिहाइंड द वॉल। यहाँ पे थीफ अपॉन सीइंग, ये अपॉन क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन। क्या है ये? मैम मतलब मैम उसको देखने पे। हाँ, तो प्रेपोजिशन हो गया अपॉन सीइंग, है ना? उसको देखने पे वो जल्दी से वो वॉल के पीछे छुप गया। तो देखो, हम दो सिंपल सेंटेंस को हम कैसे कैसे कंबाइन करके सेम मीनिंग का बना रहे हैं। कहीं हमने कंजंक्शन लगाया, कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहीं प्रेपोजिशन लगाया, है ना? और सेम ही मीनिंग रह रहा है सेंटेंस का, मीनिंग तो चेंज हो ही नहीं रहा है। हो रहा है क्या? बताओ, ये समझ आया? क्या नाम है? Yes, ma'am. अच्छा, अब मेरे को ये आदर्श आज बहुत दिनों बाद आया है। हाँ आदर्श, बोलो। हाँ हाँ, फिर से बोलो। हाँ चलो, वेरी गुड, ये भी मैं लिख देती हूँ। अभी लिख के देखते हैं। आप अपना म्यूट करो। आपकी आवाज नहीं आती है जोर से, और मैम एक और बताओ मैम। नहीं, वेट, अभी पहले उन्होंने भी, कुसुम या अंजलि और नीलेश ने भी रेज किया। फिर से मैं क्या कर दूँ मैम? 1 मिनट, हाँ आप भी कर दो। अभी पहले बताओ, आदर्श क्या बोला? द थीफ saw the policeman। सो हाइड नहीं है बेटे, सो ही हिड। अब ये सो भी देखो, हमने अलग अलग कंजंक्शंस यूज किए, एंड भी, बिकॉज भी, सो भी। सो क्या है? सो भी तो यहाँ पे कंजंक्शन ही है ना? अब अंजलि नीलेश ने फिर से हैंड रेज किया है, बताओ ये समझ आ रहा है? खुशबू, कुछ क्या कर रहे हैं हम इन दो सेंटेंस को लेके सेम सेंटेंस को अलग अलग तरह से लिख रहे हैं, और सब करेक्ट हैं ये। हाँ बताओ अंजलि नीलेश, कौन बोल रहा है? बोलो बोलो। Ma'am, same. सेम, ओके। सो बोल रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमने कंजंक्शंस पढ़े हुए हैं छोटी क्लास में, तो हमें ये मालूम है
इसलिए हम बार बार कंजंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। prepositions भी पढ़े हुए हैं। हाँ, अब ये बताएगा, व्हाट इज हिज नेम, मुनीश। हाँ, कौन सा बोल रहे हो? Yeah, ma'am. हम्म, Ma'am, the thief hid behind a wall what after he saw the policeman. ओके And the thief hid behind a wall after he saw the policeman. ओके, अगेन prepositional phrase। आपको prepositions पे ज़्यादा होल्ड है और इन बच्चों को conjunctions पे। The thief कंजक्शन जो रहता है hid the कंजक्शन भी बने दिए मैम। hid behind the wall after he saw the policeman. द पुलिसमैन। Very good, very हम तो good. इन लोगों ने उसे कंजक्शन से बना दिए इसलिए मैम मैं इससे बना रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। और भी किसी चीज से बना सकते हैं। हाँ, अब आदर्श ने फिर से हैंड रेज किया है। यस आदर्श, आदर्श आपने हैंड रेज किया। हम्म, वो तो सी सेंटेंस देखो। वेरी गुड, अभी म्यूट करो। सबसे मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मेरे को खुशबू बताएगी कि उसको ये समझ आया कि क्या कर गए हम कि नहीं। अब ये सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए और भी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। ओके, हाँ बताओ। हाँ तो मैम हाँ बोलो। he saw the policeman. So behind the वो तो लिख दिया हमने, behind a wall. बिहाइंड द वॉल, बिहाइंड अ वॉल। हाँ, हमने अ का द कर दिया, अ ही होगा हर जगह। मैं बस सो नहीं है, हमने सो वाला कोई सेंटेंस नहीं लिखा। देखो ई सेंटेंस। ई हाँ, ओ हाँ मैम लिखा है। लिखा है ना, सब लिखे हैं हमने। ही बिहाइंड अ वॉल, अ का द कर दिया हमने, अ वॉल। ओके, अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ। उसमें और भी तरीके से हमें बताया है कि हम सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के कैसे एक और सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे उनको। अगर अभी ये वाली एक्सरसाइज आप देखोगे तो हम इसमें वर्ब को हमने यूज़ किया, एडजेक्टिव को नहीं किया अभी हमने यूज़, हमने नाउन्स इन अपोजिशन नहीं किए यूज़। पर हर एक में हर एक तरीका यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए वील जस्ट। हाँ बताओ। Ma'am, as the thief saw the policeman, he hid behind the wall. हाँ, एज ही सॉ द पुलिसमैन ही हिड बिहाइंड द वॉल। वेरी गुड। तो अभी मैं वो लिख नहीं रही, अब हम पहले ये वीडियो देखते हैं। ओके, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में ये निहीर सर हैं, ये हमको क्या बोल रहे हैं। ओके, और कैसे कैसे। सो कितने सारे तरीके बता रहे हैं, एंड दिस इज ओनली फॉर सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? जॉइनिंग टू सेंटेंसेस टू मेक वन। किसी भी चीज को हम मिला के एक करें तो उसको बोलते हैं सिंथेसिस। ओके, तो अभी हमने सिंथेसिस किया है सेंटेंसेस का। हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को लेके जोड़ दिया तो वो सिंथेसाइज हो गए। ओके, तो अभी आगे पढ़ते हैं। In this video, we will learn what is synthesis of a sentence and its different types. अब ध्यान से And we सुनना। will learn how to combine two simple sentences into one simple sentence with examples. Finally, I will give you an exercise to practice. So without further ado, let's get started.
what is the synthesis of a sentence? Synthesis of a sentence means the combination of two or more simple sentences into one sentence. This one sentence could be a simple sentence, compound sentence, or a complex sentence. And the meaning of this sentence should be identical to the individual sentences. Let me give you an example. He saw the police, he ran away. These are two simple sentences. Now, how would you combine them into one simple sentence? Combining these two simple sentences, I have created one simple sentence in this way. Seeing the police, he ran away. Notice that this simple sentence is having only one finite verb and one subject. And the word seeing is a present participle here. This is one of the way in which we can combine two simple sentence into one simple sentence. आप लोगों ने तो And इससे this बहुत entire ज्यादा कर process दिए. is called the synthesis of a sentence. Now, let's learn all the ways to combine two simple sentences into one simple sentence. There are 7 ways of achieving it. Number 1, verb. We can convert one of the finite verbs into a non-finite verb using a participle or infinitive. Let's learn how to combine the sentences using participle. We can use this technique when we are talking about two actions done by the same subject. ओके अब ये ध्यान दो, अगर दो एक्शन सेम सब्जेक्ट ने किए हैं तो हम पार्टिसिपल यूज करेंगे. जैसे अभी हमने भी अपनी एग्जाम्पल में किया, थीफ के ही दो एक्शन थे, उसने देखा और वो छुप गया, तो हमने पार्टिसिपल भी यूज किया, राइट. हमने सीइंग द पुलिस ये भी बोला था. इसके और भी एग्जाम्पल्स जो बाकी सेंटेंसेस हैं, कोई भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल करेक्ट है, बट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे सर. ओके, सो नाउ लेट्स सी. Gap between the two actions is significantly less. We use present participle, else we use perfect participle. Let's look into an example where present participle is used. Rohan saw a lion, Rohan ran away. Here, as immediately after seeing the lion, Rohan started running, so we have used the present participle seeing here. So the sentence will be, seeing a lion, Rohan ran away. Let's look into an example where perfect participle is used. He played cricket. He went to the office. Here, ओके, नाउ अब सपोजिंग ये वाला तो वैसा ही सेंटेंस है, रोहन सॉ अ लायन, रोहन रन अवे. दिस इज सिमिलर टू द सेंटेंस विच वी हैव मेड हियर इन दिस. और आप लोगों ने इतने सारे सेंटेंसेस के बना दिए, सिंपल सेंटेंसेस, विच वाज रिमार्केबल, वेरी गुड. नाउ now let's try to combine these two. He played cricket, he went to office. Here what is being said is that we use. अभी रुक जाओ. परफेक्ट, पहले मेरे को बताओ परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है. 1 मिनट अपना ये ऑन करो आदर्श. माइक नहीं, वीडियो ऑन करो. वीडियो ऑन करो आदर्श. स्टार्ट योर वीडियो ऑन करो बेटे. हाँ, अब दिख रहा. तो आपकी आवाज क्यों इतनी एको कर रही है? सामने आओ. हाँ, नहीं, उससे कुछ नहीं होता. आपका फोन कहाँ? नहीं, दिखाओ मेरे को, सामने करो. उसमें नॉइज कैंसिल क्यों, एको क्यों हो रहा है? आप एक बार इस सेटिंग्स में जाके देखो. कुछ तो गड़बड़ हो. नहीं, आपने इसने हेडफोन्स भी नहीं लगाए हुए हैं, फिर भी हो रहा है. हेडफोन्स हेडफोन लगा दी तो उसमें से आवाज नहीं जाती है, आवाज जाती.
तो फिर इसलिए हमारी आवाज अच्छी आती है, उसकी थोड़ी लाइन अच्छी आती है। नहीं, उसने बीच में हेडफोन्स लगाए थे तब भी उसका आ रहा था, है ना आदर्श? चलो नेवर माइंड। अच्छा आदर्श बताओ, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वेरी गुड। परफेक्ट सेंटेंस कौन सा होता है? वो तो ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है, मगर परफेक्ट टेंसेस हमने किए हैं ना, तो कौन सा होता है परफेक्ट में, क्या लगता है उसमें? अच्छा चलो, हम आपको समझ आ गया, परफेक्ट में क्या लगता है? म्यूट करो, मैम तो आवाज नहीं आ रही। म्यूट करो, आदर्श म्यूट करो, फिर आएगी मेरी आवाज। अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। हाँ, उसी से एको होता है, इसीलिए नहीं आती। अब ऐसा करो आदर्श, आप चैट पे लिख के भेजो मेरे को, कैसे कंबाइन कर रहे हो सेंटेंस, उसको चैट पे लिखो। आज आए भी आप इतने दिनों बाद हो। ही प्लेड क्रिकेट, ही वेंट टू ऑफिस। अब पास्ट, ये पास्ट पार्टिसिपल हम कब यूज करते हैं? जब दो एक्शंस के बीच में गैप हो। अभी जो हमने सेंटेंस किया था, उन एक्शंस के बीच में कोई गैप नहीं था, अब यहाँ पे गैप है, तो अब पास्ट पार्टिसिपल यूज करके कैसे सेंटेंस बनेगा? वेट मुनीश, किसी और ने बताना है तो बताओ, देखते हैं कौन और दे सकता है इसका आंसर। खुशबू है कि चली गई? यस मैम। हो ना, ट्राई करो, बताओ पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है खुशबू? मैंने आप लोगों को पूरी लिस्ट भेजी थी जो लर्न करने के लिए, याद है वर्ब्स की? अच्छा म्यूट करो, हाँ बताओ मुनीश। मैम ही प्लेड क्रिकेट देन ही वेंट टू द ऑफिस। देन नहीं यूज करना है, हमने पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। और परफेक्ट पार्टिसिपल आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है आदर्श। हमें परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं बताओ? अभी तो आपने चेंज किया होगा वो, बताओ अंजलि बताओ, परफेक्ट टेंसेस में क्या यूज करते हैं? कौन बोलो? हैव, हैड, है ना, और उनके साथ में हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। अब मैंने हिंट दिया, अब इस सेंटेंस को बताओ, बताओ। बताओ। He played cricket. He went to office. मैम Yes. Try. had played cricket and went to the office. And क्यों? चलो, आफ्टर इसमें यूज होएगा। ज्वाइन करने के लिए आफ्टर यूज होएगा। हाँ बताओ मुनीश, बोलो मुनीश। कुछ सोच रहा हूँ मैम। अरे जोड़ना ही तो है, पहले उसने कौन सा काम किया वो पहले लिखेंगे ना क्रिकेट खेल रहा था मैं पहले। हाँ, तो
Before he went to the office. हाँ वो भी चलेगा, बिफोर ही वेंट टू द ऑफिस। फिर आगे मैम he played cricket before he went to the office. मैम एक तो ये है। हैड यूज करना। देखो अभी आई डोंट नो वेदर यू कैन सी दिस। मैम before he had went to the office. नो नो, इसने लिखा है। अरे कहाँ गया आदर्श ने? अभी तो सही सेंटेंस लिखा था, कहाँ चला गया चैट बॉक्स? 1 सेकेंड। अभी आफ्टर ही हैड प्लेड क्रिकेट, देन की जरूरत नहीं है क्योंकि आफ्टर ने इनको ज्वाइन कर लिया है आदर्श। आफ्टर ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही कॉमा लगा के ही वेंट टू द ऑफिस। ओके, गुड, वेरी गुड आदर्श। आफ्टर ही हैड प्लेड क्रिकेट ही वेंट टू द ऑफिस। या आप बोल रहे थे बिफोर गोइंग टू द, बिफोर जब आप यूज कर रहे थे, लेट मी राइट इट ऑन द बोर्ड। आप जब बिफोर यूज कर रहे थे तो, अरे यार ये सुनते ही नहीं है लोग। I'll call you back, I'm in the class. अब हम यहाँ पे अगर हम लिखें he played cricket, he went to the office। अब दोनों कामों में थोड़ा तो टाइम लगा होगा ना, इसलिए यहाँ पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं। और वो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, जैसे अभी इसने यूज किया आदर्श ने, आफ्टर ही हैड प्लेड क्रिकेट कॉमा ही वेंट टू द ऑफिस। यही शायद अंजलि भी यही बोल रही थी। यस अंजलि, वर यू सेइंग दिस ओनली? Yes. हाँ, नाउ what Munish was saying, before he went to the office, अब उल्टा हो गया, he had played cricket। तो हमारे पास had भी है और थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले भी है, क्रिकेट, CRICKET। ओके, ये समझ आया अंजलि? ये Yes, ma'am. नीलेश एंड खुशबू, बस देन बीच में मत डालना इसमें। ओके, ओके, ये सेंटेंसेस लिखो सब लोग जितने भी लिख रहे हैं। ओके, तो अभी फर्स्ट वाला बता रहे हैं कि पार्टिसिपल कैसे यूज करते हैं। पार्टिसिपल के भी दो फॉर्म्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी फॉर्म होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें थर्ड फॉर्म होता है ईडी वाला, और हैव या हैड लगता है डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। ये क्योंकि प्लेड था तो हैड लगा। After playing cricket, Rohan would have taken some time to get ready for office. As there is a gap between the two events, so we will use the perfect participle having played here. The final sentence will be having played cricket, he went to the office. ओके, सो वी कैन Now, इवन let's- से हैविंग प्लेड क्रिकेट। तो अब अगर इधर हम हैविंग प्लेड भी बोल रहे हैं, हमने परफेक्ट पार्टिसिपल प्लेड यूज किया और हैविंग यूज किया कि उसने तब किया था। सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग यूजिंग अ परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, what we have written in this, that is these two sentences are also perfect। तो हम अभी क्या समझ रहे हैं कि हम सेम चीज को यूज करके भी अलग अलग तरह से सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी किया, ये सेकंड सेंटेंस बना देती हूँ। यहाँ पे भी हमने इतने सारे सेंटेंसेस अलग अलग तरह से ज्वाइन किए, यहाँ भी दो तरह से किए। अब तीसरा तरीका
सर ने जो अभी बताया, हैविंग प्लेड क्रिकेट, he went to the office. So this is also correct. पर हमने यहाँ पे having का वो वाला फॉर्म यूज किया है. Having is the present participle form और played is the third form of. So हमने दो different ये helping verb को हमने having करके यूज कर लिया इस सेंटेंस में. ओके okay? ये समझ आ रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Shall we move ahead? Learn how to combine sentences using infinitives. Okay. Rohit ran fast. Who knows what an infinitive is? First tell me that. What is an infinitive? Do you all know what an infinitive is? That is also verb only. हमने अभी verb का प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर हमने क्या देखा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट? फिर उसका हमने परफेक्ट फॉर्म देखा क्योंकि हैव हैड यूज किया. अब हम कह रहे हैं एक और फॉर्म वर्ब का होता है, वो होता है टू. इन टू एंड द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव. इट इज यूज्ड, अभी देखो इस वीडियो में और समझ आएगा. टू प्ले मैम ताकि वो जो वर्ब है वो मतलब अलग अलग टाइप के रोल कर पाए. एग्जैक्टली. तो अलग अलग टाइप के रोल्स प्ले करते हैं वो ये वर्ब्स बहुत ज्यादा टाइप के रोल्स. पहले हमने टेंसेस किए तो हमने देखा कि वर्ब्स के कितने रोल बदले, है ना? अब हम सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हमें अभी नजर आ रहा है और पर सिर्फ सेंटेंसेस के सिंथेसिस में सिर्फ वर्ब्स का ही रोल नहीं है. हमने देखा प्रेपोजिशन का भी रोल है, कंजंक्शंस का भी रोल है. अभी हम आगे और देखेंगे एडजेक्टिव्स का है, नाउन्स का, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग रोल्स हैं. तो अभी ये वाला सेंटेंस करके एंड देन वील एंड द क्लास. ओके? He wanted to get first prize. Using infinitives, we can combine the sentences in this way. Rohit ran fast to get first prize. देखो कितना छोटा हो गया सेंटेंस. रोहित रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज. ही वांटेड वगैरह सब निकल गया. इसको जोड़ के हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, रोहित रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज. इसका कुछ और भी बना सकते हो. इन दोनों को कैसे और आप वैसे भी बना सकते हो. रोहित रैन फास्ट बिकॉज ही वांटेड टू गेट अ फर्स्ट प्राइज, है ना? रोहित रैन फास्ट टू गेट अ फर्स्ट प्राइज. Rohit wanted to get the first prize, so he ran fast. Okay? ये समझ आ रहा है? तो again there are different ways of joining the sentences, but अभी हम यहाँ पे we are just taking one type which is to, the infinitive to get. So get is the verb here. To पहले लगाया, to get the first prize. Okay? तो infinitive use Yes, हो ma'am. गया. हाँ, infinitive की तरह infinitive से join किया. तो आपको ये अलग अलग Yeah. तरीके बता रहे हैं Okay. कि Isn't कैसे it आप fair? join कर सकते हैं. Let's look into one more example. He is very tired. He cannot run. Okay, now you join this using an infinitive. He is very tired. He cannot run. कैसे ज्वाइन करेंगे? इसमें मैं एक हिंट देती हूँ कि हमने हाँ बोलो. मैम मेरे को ऊपर मैम रोहित वाला बताओ ना. वो नहीं, पहले अभी हम इन्फिनेटिव पे कंसंट्रेट करें, उसके बाद वहां पे आएंगे, फिर आप वो भी बताना. पहले मेरे को ये जो दूसरा सेंटेंस है, ही इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट रन, इसको इन्फिनेटिव यूज करके बनाओ और रन का इन्फिनेटिव बनेगा. हिंट दे रही हूँ. इन्फिनेटिव यूज करके कौन बनाएगा? आदर्श कैन सेंड ऑन द चैट. अंजलि, नीलेश, खुशबू, कोई भी बताओ.
He is very tired. He cannot run. बोलो, किसी को कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है किसी को कुछ समझ या नहीं? He is very tired, so he cannot run. बेटे मैं कह रही हूँ टू रन का इन्फिनेटिव यूज करना है. जैसे टू गेट हुआ था वैसे ही कुछ होना चाहिए. टू रन. तो क्या बोलेंगे? ही. हाँ बोलो. He is very tired to run. बस. He is very tired to run. इन्फिनेटिव यूज किया. जो आपने सेंटेंस बनाया है आदर्श वो भी करेक्ट है, वो कोई गलत नहीं है, मगर अभी मैं बोल रही हूँ इसमें इन्फिनेटिव तो आया ही नहीं. He is very tired so he cannot run. वो तो ठीक है, तो आपने तो so का यूज किया, पर मैं कह रही हूँ इन्फिनेटिव यूज करके बनाओ तो Ma'am, he is too tired to run. हाँ, he is too tired to run वो भी चलेगा, बट अभी हमारे पास he is very tired है तो हम वही यूज करें, वो भी चलेगा. He is too tired to run is also perfect. Okay? चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इन द वीडियो. मैम पहले मैं रोहित वाला हाँ बताओ प्लीज. मैम टू गेट द फर्स्ट प्राइज ही रोहित ran fast. Very nice. To get the first, so you are starting the sentence with to get. Excellent. Infinitive ही यूज किया आपने. To get the first prize, रोहित ran fast. Excellent. Very good. ये सबको समझ आया? सबको समझ आया ये? Give me a thumbs Yes, up. ma'am. Okay. चलो, then we'll move ahead in the video. Using infinitives, we can combine in this way. He is too tired to run. Here, to run is used as an infinitive. So in this way, with the help of non-finite verbs, we can achieve मैम ये तो वही है कि मैंने synthesis बताया. हाँ, of a simple absolutely. sentence. Let's look into the next way. Number 2, using adjective. Okay, now we can see using an adjective how do we join two simple sentences. अभी तक तो हमने देखा नहीं. अब वो कब करते हैं, कब कर सकते हैं adjective से join? इसमें क्या था? infinitive past participle को हमने कब यूज किया था? जब actions दो थे, subject एक ही था, और फिर एक्शंस इमीडिएटली हो रहे थे या एक्शंस में थोड़ा सा डिले था, टाइम गैप था, तब हमने वर्ब को यूज किया. ये ध्यान रखना, ये लिख के रख लो. एडजेक्टिव कब यूज करेंगे टू जॉइन देम? Now, let's learn how to combine simple sentences using adjective. I saw an elephant. The elephant was a giant. ओके, Yeah. नाउ अब इसमें बताओ यहाँ पे क्या है? विच इज द एडजेक्टिव हियर? विच इज द एडजेक्टिव? इन दो सेंटेंसेस में कोई एडजेक्टिव है? बताओ, कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड है इसमें? Ma'am, giant. वेरी गुड, जायंट है. तो अब इनको जायंट से हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं? बताओ, अगर हम जायंट को लेके इन दोनों को कंबाइन करके सेम मीनिंग रहे. आई सॉ एन एलिफेंट. I saw a giant elephant. वेरी नाइस. किसने बोला ये? एक्सीलेंट. Ma'am, I'm हाँ, वेरी गुड. आई सॉ अ जायंट एलिफेंट. अब हमने जायंट से इसको एक कंबाइन कर दिया, एडजेक्टिव यूज कर लिया ज्वाइन करने के लिए. इज दिस अंडरस्टूड? हाँ बोलो. आदर्श क्या बोल रहे हो? एक सेकंड में अपना म्यूट कर रही हूँ. विजय यार ये इसको ले जाना है साथ, इससे बात कर लो. दिमाग है वहाँ. ये लक्ष्मण राव का फोन आया, पहले जया का आया.
उसको लेके आप कॉल करिए तो लोग नहीं निकलेंगे। हाँ बोलो बेटे। यस हाँ मैं टाइप कर रहा था तब तक उसने बता दिया। क्या Same. क्या चीज़ बताओ, क्या बताया था? मैंने एडजेक्टिव वाला जब तक मैं टाइप कर रहा था तब तक उसने बता दिया। अच्छा, आई सॉ अ जायंट एलिफेंट, वेरी नाइस, कोई बात नहीं, वेरी गुड। आई नो यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। खुशबू और नीलेश की आवाज़ें नहीं आ रही तो मुझे पता नहीं चल रहा वेदर दे आर अंडरस्टैंडिंग। समझ आ रहा है ना कैसे हम कंबाइन कर रहे हैं? तो जहाँ पे भी अब हमने ये देखना है, पहले हमने क्या देखा, वर्ब्स को हमने कब करा, जब दो एक्शंस थे और हमारा सब्जेक्ट सेम था। एडजेक्टिव से जब भी हमारे किसी भी सेंटेंस में कहीं एडजेक्टिव होगा, हम उस एडजेक्टिव को लेके ज्वाइन कर सकते हैं उनको, उसी एडजेक्टिव को यूज करके, राइट? ओके Yes, ma'am. ओके, वील डू वन मोर सेंटेंस एंड देन वील एंड द क्लास। तो जितना भी हमने किया है उतना ही करके सब बताएंगे। Giant is describing the elephant. So we can write the sentence in this way. I saw a giant elephant. Here, giant is used as an adjective. Let's look into next example. I found my wallet. It was lost. Combining the sentences, it ओके, becomes इसका बताओ क्या बनेगा? आई फाउंड माई वॉलेट, इट वॉज लॉस्ट। कोई भी जो भी बताना चाहता है बताओ जल्दी से। I found my lost wallet. बस, सिंपल, राइट? सो वील एंड हियर, इसके आगे के वील डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आज के लिए इतना ही। एंड जिसने भी होमवर्क, हाँ वेरी गुड आदर्श, जिसने भी होमवर्क पिछला किया है उनका मैं चेक कर लूँगी, और नहीं किया है तो सबमिट कर दो। और आदर्श प्लीज़ बी रेगुलर इन योर क्लास, ओके?